to look into a workable aspect, and because of that a person can think differently, and that's what being looked into it as to how Ideal candidate for the like officer like qualities, what an ideal candidate should have if he's coming for the SSB, and if he wants to select candidate, prepare for all those tasks. Like there are those full group task, half group task, and this obstacles are there. They need to at that point of time कि मैं कैसे भी करके SSB पास कर लूँ, एंड उसके लिए वो 4 जगहों से कोचिंग ले लेता है, एंड जो इंडिविजुअल वो खुद बंदा आता है वो क्लियरली यू आर एबल टू डिस्टिंक्ट हिम कि भाई ये कोचिंग करके आया हुआ है. इफ इज गोइंग टू मच एट टाइम्स, बिकॉज कोचिंग में अंदर है पूरा दम लगा के ही इज रिलैक्स लाइक दिस, हाँ ठीक है कर लो, मैं कहीं और देख रहा हूँ. वो एक्चुअली में आपकी गलतफहमी है कि वो कहीं और देख रहा है. So, good morning viewers. Today we have Colonel Ashok Pathak again, and we had a very great podcast with him in the last session. And in that we came to know he is a qualified GTO and he has been into SSB Allahabad, right sir? Yes sir. And so we are here again with him to dig deep about the SSB, how things work over there, how a person who is going for SSB should get trained, and what a GTO does. So welcome again sir. Thank you for being here. Good morning Rishi, thank you so much for calling me over again for our podcast, and I'll certainly like to share certain views of mine of the GTO technique, which incidentally I have undergone for a longer time, and being a GTO in the SSB. Okay sir. So we'll start first, like what is SSB? If somebody is giving the CDS paper or NDA paper, or he's planning to join the armed forces as an officer, like he has to go through the SSB. What is SSB, sir? Rishi, SSB is a procedure which is competitive in nature, and the full form of SSB is Service Selection Board. So a candidate, after he has undergone the written examination and has qualified in it, he is called for a SSB interview. Okay. The entire process is known as SSB interview, which encompasses a couple of techniques, which I'll come to a bit later. But this is an interview which needs to be done to check the personal traits of a candidate. His academic capabilities have been checked in the written exam. Sir. His personal traits, which we are looking into to become a defense officer in the future, they are being assessed in the service selection boards. Okay, sir. And that's why there are centers, service selection centers, and they encompass service selection boards, wherein the assessors are there to assess the personality traits of a candidate. So has it been seen that a person coming from a certain background, like from the arts background, science background, or technical background, like BTech, they perform differently in the SSBs, or SSB is a filter where they are able to filter it out from all the branches? To my mind, there is no difference of being a technical person or a non-technical person, because the personality is a phenomena which is akin to a particular person. Okay. Like no two personalities are alike. Right, sir. There might be certain similarities, but there will be certain differences. So in the sense that even if you are technically qualified, basically speaking, there's nothing technical which is being assessed out there. Primarily what is being assessed out there is how the way you interact with people, which way you exhibit your potential in terms of your personality, how you are accommodative to people, whether you can form a team, and whether amongst the team you can emerge as a leader. Okay. Basically what is being looked into is that we are looking for leaders in the SSB. Sir. If you become defense officers, you are basically leaders of men. And if you are leaders of men, then obviously those traits have to be there in you, and you need to exhibit them, you need to manifest them. Okay. And that is being done in the SSB by way of various techniques which you have there. Okay. To add a little further, in the service selection board 3 techniques वहाँ होती हैं. एक तो इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरव्यू. Right. एक होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट. Right. The psychological tests are there, and the psychologist is judging you in the psychological aspect. And third is the group testing technique, the GTO. The entire process is a psychological process, because after all it's personality related. लेकिन ये techniques अपने अलग अलग तरह से वो आपकी personality traits, जिसको हम बाद में convert करते हैं officer like qualities में. Right, sir. We are looking into officer like qualities. Right, so वो officer like qualities को
जज करने के लिए उनके डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं विच हैव बीन डिवाइज्ड इन टर्म्स ऑफ टेस्ट एंड टास्क. Okay. नाउ जो साइकोलॉजिकल टेक्निक है उसको हम लोग टेस्ट कहते हैं, Right. बट इन अ GTO टेक्निक वी कॉल देम सिचुएशनल टास्क. वो डे टू डे कॉमन जो प्रॉब्लम्स होती रहती हैं विच वी कीप फेसिंग, उनको सिचुएशनली रिलेट करके हम उसको टास्क कहते हैं. और इसका एक चीज़ और है, लाइक अ मैथमेटिकल सोल्यूशन. नाउ इन द मैथमेटिकल सोल्यूशन, दो इट इज़ नॉट रियली pertinent to a psychological technique, but test और task में difference क्या है? Test has got a specific answer, like a mathematical problem. Okay. It has to arrive at a correct answer, then only the thing is correct. Whereas in a task, it is those, not single solution is not there. There are multiple solutions. We call them workable options, workable plans. Okay. So number of them are there, so you really don't have to hit to the right answer all the time. Okay, so you have to look into a workable aspect, and because of that a person can think differently, and that's what being looked into it, as to how a person evolves a solution in this manner, other manner, or otherwise. Okay. So a person can do a thing in a straight manner or a bit different manner, but you just see the approach over there, the task. How he is approaching to the problem. Correct. Like for instance, if I dwell down specifically to the GTO technique, we are, as I said, there are 3 workable solutions in any task which we have got there. Now it's up to the candidate as to which particular line he takes on. Okay. And he approaches the obstacle to tackle it, the situation, in a manner that this is the best option he thought of. Okay. And he puts his energies to fulfill that and achieve at the ultimate aim of going over that particular obstacle. Okay. An obstacle is what is basically a problem. So he has to surpass that problem. Okay. By way of his logic, okay, by way of his reasoning, and whatever ideas he thought will be fruitful in executing that plan. Okay, sir. So like there are 3 techniques for the SSB: interviewing, psychologist, and GTO. We will be focusing primarily on the GTO part. So I want to know, like, what is the relevance of the GTO task? Like, what is being evaluated during the GTO task? GTO टास्क में जो इवोल्यूशन जो GTO असेस करता है वो चंद एक चीज़ों को देखता है. सबसे पहले तो उसका इट इज हिज टीम वर्क, Okay. it is his overall personality, intelligence, then the aspect of cooperation, Okay. and also physical endurance and stamina. Right. Okay, he also has to display flexibility, adaptability, which will encompass into a teamwork. Okay. So basically it is problem solving abilities, teamwork, physical endurance and stamina. That's the thing which a GTO is basically assessing. So sir, can you define an ideal candidate for the like qualities, what an ideal candidate should have if he's coming for the SSB and if he wants to get selected in the defense forces? To my mind, an ideal candidate will be the one, firstly, he should have a personality which is certainly conducive to an army way of life or a defense way of life. Also, over a series of tests which you are going to undergo, we'll be able to make out whether that guy is displaying some sort of a teamwork, he's got the initiative, Okay. he's looking lively, vibrant, and he's able to be not very tensed in the sense that even if he is facing an interview or something, he is all displaying adequate amount of confidence that whatever I'm supposed to undergo, I am more than capable of undergoing it and will be able to put in my best. Okay. Though of course in terms of traits, in the army officers we have things like discipline, initiative, okay, physical stamina, likewise, and they actually come up by way of various testing which we undergo in the SSB. Okay, sir. So like there are multiple tasks in the GTOs, and how should a candidate prepare for all those tasks? Like there are those full group tasks, half group tasks, and this obstacles are there. They need to go through it. Like, has somebody should go through a coaching, definitely, or he can do it at his home by applying basic common sense and things? ऋषि, एक्चुअली जो GTO टास्क हैं और फॉर मैटर SSB में जो भी हम लोग टेस्टिंग करते हैं कैंडिडेट्स का, उसमें वी वांट स्पॉन्टेनियस बिहेवियर. Okay. Okay, and we want a personality trait which is coming out from a person individually. So really speaking, अगर किसी ने तैयारी नहीं भी की है, कोचिंग नहीं भी की है, तो कोई ऐसा नुकसान नहीं हो गया है.
इट इज़ द थिंग एज टू हाउ एट द स्पर ऑफ द मोमेंट वो कोई प्रॉब्लम को सोचता है, उसको एनालाइज करता है, उसका सोल्यूशन निकाल पाता है और उसको फिर एग्जीक्यूट करता है। लेकिन अगर किसी ने तैयारी की है तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि उतना उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है वो विकास करने के लिए। और कहने का मतलब ये है कि जितना रियलिस्टिक होगा, जितना पॉजिटिवली ओरिएंटेड होगा, पॉजिटिव आउटलुक रखेगा, उसको ये जो टास्क हम जो कराते हैं, चाहे जीटीओ हो या साइकोलॉजिकल टेस्ट हो, उसको उनको आइडेंटिफाई करने में, उसको समझने में थोड़ी मुश्किलात नहीं आएगी और उसके परफॉर्मेंस उसी हिसाब से बेहतर भी होगी। Alright, sir. So it's been seen like people go for coaching के लिए जाते हैं, but at sometimes the coaching overpowers their original personality. They try to act heroic in the GTO or act heroic in the stories, but deep down you also know that ये बंदा सही नहीं है. So कितनी कोचिंग ली जाए, कोचिंग को किस तरह से यूज किया जाए? Because a candidate is going for SSB, he has seen like after SSB and medicals the training is there and then I will be an army officer. So he is going to put his everything at that point of time कि मैं कैसे भी करके SSB पास कर लूँ, एंड उसके लिए वो 4 जगहों से कोचिंग ले लेता है, एंड जो इंडिविजुअल वो खुद होता है वो तो रहता नहीं है 4 कोचिंग्स के बाद, एंड बाद में शायद वो कोचिंग ना लेता तो सिलेक्ट भी हो जाता। कोचिंग के नेगेटिव इफेक्ट्स भी आप लोगों ने देखे होंगे सर ऐसे। जैसे मैंने कहा कि हम लोग वहाँ पर ओरिजिनलिटी देखते हैं सर। ओरिजिनलिटी में उसका जो एक्चुअल वर्थ होता है, जो उसकी एक्चुअल पर्सनालिटी है, वो डिपेक्ट होती है। राइट सर। कोचिंग में उसको अवेयरनेस हो सकती है कि क्या क्या एसएसबी में देखा जाता है, क्या क्या टेस्ट होते हैं, क्या क्या साइकोलॉजिकल टेस्ट में होते हैं, क्या जीटो टेस्टिंग में होता है, उसको वो प्रैक्टिस कर सकता है सर। ठीक है, जिससे वो उतना उसके बारे में उसकी अवेयरनेस बढ़ जाती है, उसको लगता है कि ये मैंने किया है पहले, तो अगर इस तरह का कोई सिचुएशन आएगी मेरे पास तो मैं उसको अंडरटेक कर सकता हूँ। तो कोचिंग को उसको बहुत जुडिशियसली इस्तेमाल करना चाहिए। ओके। मतलब कहने का मतलब है, जैसे कहावत होती है कि नकल में भी अकल चाहिए। सर। तो अगर कोचिंग में आपको बताएगा कि ऐसा सिचुएशन आएगी तो उसको ऐसा करना, वो हमेशा शायद आपको फ्रूटफुल नहीं होगा। क्योंकि आपको इतना अपनी विजडम रखनी पड़ेगी कि वो सिचुएशन फर्स्टली तो वो सेम टू सेम हो नहीं सकती, थोड़ा बहुत सिमिलर हो सकती है, लेकिन सिमिलर सिचुएशन में भी तरह तरह के व्यू पॉइंट्स, तरह तरह के आइडियाज, सोल्यूशंस हो सकते हैं। तो वहाँ हम ये देखते हैं कि जो आपको सिखाया गया है उसका आपने किस तरह से इस्तेमाल किया है और कितना ओरिजिनल थॉट है आपके उसमें। जैसे कोच में, जैसे कोचर ने आपको, जो कोच कर रहा है उसने आपको बता दिया कि इसको ऐसा करना है, अगर उसी की पर्सनालिटी अगर आप वहाँ पर दिखाने लगेंगे एसएसबी में तो क्या होगा कि वो बेड आउट हो जाएगा। तो हम एक्चुअली में किसी का वो नहीं चाह रहे हैं कि किसी ने जो आपको सिखाया है वो आप वहाँ बता दो। हम ये चाहते हैं कि क्या आप में वर्थ है, आपकी ओरिजिनल थॉट क्या है, किस तरह से आप उसको मैनिफेस्ट करते हैं और किस तरह से उसको आप एग्जीक्यूट करते हैं। So sir, I want to ask like जो कोचिंग करके बंदा आता है वो क्लियरली यू आर एबल टू डिस्टिंक्ट हिम कि भाई ये कोचिंग करके आया हुआ है, इफ इज गोइंग टू मच एट टाइम्स, बिकॉज कोचिंग में सिखाते हैं कि जैसे ही गो हुआ टास्क का तुम सबसे पहले जाके फट्टा उठाओ, रस्सी उठाओ एंड चढ़ जाओ, भले तुमको सॉल्यूशन आता हो या ना आता हो, बट लीडर बनने की तुमने ट्रेड्स दिखा दिए हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, कोचिंग में यही सिखाया दिया जाता है कि बस आपको बस इन्वॉल्व हो जाना है पूरी तरह से, गले में उसने रस्सी बांध ली, नाग देवता बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाना है। तो वो इस तरह के मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं, वो जीटो टेक्निक में तो सरेआम दिखाई देते हैं सर। और हम किसी कैंडिडेट को बीच में इंटरप्ट तो कर नहीं सकते। जब जीटो टास्क वगैरह होता है हम किसको सिंगल आउट नहीं करते, हम उसको एज अ जेनरिक रूल में कोई भी चीज़ को अगर हमको इंटरजेक्ट भी करना है तो हम एक जेनरिक वे में बोलते हैं, जेंटलमैन any rules are being broken और gentlemen are you following the direction which have been passed, जिससे कि एक इंडिकेशन ही मिल जाता है। अगर कोई वाइज पर्सन है जो समझता है मैं कुछ गलती कर रहा हूँ तो वो उसको करेक्ट करने लगेगा। साथ साथ जो इंटरजेक्शन होता है जीटीओ का वो जितना मिनिमल होगा उतना हम लीवरेज देंगे कैंडिडेट को अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करने में, और जितना ज़्यादा उसको लीवरेज मिलेगा उतना ज़्यादा वो एग्जिबिट करेगा अपनी पर्सनैलिटी। तो जैसे आपने कहा कि कोई कोचिंग में ऐसे सिखा देते हैं कि बिगनिंग में आपने किया और आप जो है बिल्कुल लग जाइए, तो वो दिखाई देता है, लेकिन हम पहले क्या करते हैं उसको सीख देखते हैं कि ये कितनी बार कर रहा है उस तरह से, ये बार बार उस चीज़ को कर रहा है या उसने थोड़ा सा इनिशिएटिव अपना पहले दिखाया। इनिशिएटिव तो कह रहा था कि लीवरेज देने की जहाँ तक बात है हम उसको मौका देते हैं कि वो अपना एग्जिबिट करे, क्योंकि आइडिया ये है कि हमको उसको जज करना है। अभी हम देखते हैं कि वो कितना कुछ रिस्पॉन्सेज दिखा रहा है जो उसको किसी ने सिखाए हैं या और कितने उसके ओरिजिनल रिस्पॉन्सेज हैं। तो ओरिजिनलिटी इज द फैक्टर जिसको हम वेटेज देते हैं। किसी का सिखाया हुआ रिस्पॉन्स
हम उसको नेगेटिव मैं नहीं कहूँगा लेते हैं, बट उसको हम बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। ओके सर। सो लाइक ये जो सिखाए हुए रिस्पॉन्सेज की हम बात कर रहे हैं, सो सेम रिस्पॉन्स ये कैंडिडेट आपको साइक में भी देगा, सेम रिस्पॉन्स आपको ये इंटरव्यू में भी देगा, एंड वहाँ भी सेम निकलता है? अमूमन हालत में तो यही होगा, बिकॉज कोचिंग में क्या होता है कि एक तो समय नहीं होता कोचिंग में, Right. वो लिमिटेड ड्यूरेशन में वो चाहते हैं सब कुछ उनको सिखा दिया जाए और उनको तैयार करके भेज दिया जाए। Sure. तो उनके लिए बेसिकली जो मैं समझता हूँ कोचिंग में क्या होता है, ये बताते हैं कि इसको कैसे हैंडल करना है, और उसके भी चंद एक तरीके बता पाते हैं, वो पूरे तो बता नहीं पाते। तो उस केस में ऑटोमेटिकली जब उसका लिमिटेड नॉलेज होती है तो वो सब टेक्निक्स में वही एग्जिबिट करने की कोशिश करता है। Sure. चाहे वो साइकोलॉजिकल टेक्निक में रिटन फॉर्म में है, इंट्रो टेक्निक में वो बोल के बता रहा है, और जीटो टेक्निक वो डेमोन्स्ट्रेट करके बता। सो सर, जैसे आपने कोचिंग के बारे में बताया, सो अ पर्सन शुड टेक कोचिंग और शुड नॉट टेक कोचिंग, और हाउ मच शुड ही रिलाई ऑन द कोचिंग पार्ट? ऋषि, मैं समझता हूँ कि मेरे को ये कहना सही नहीं होगा कि पर्सन कोचिंग ना ले, क्योंकि ना तो मेरे कंट्रोल में है वो। राइट। लेकिन वो कोचिंग ले, तैयार करे अपने को, जिससे कि वो कॉन्फिडेंट फील करे, लेकिन उसका इस्तेमाल प्रॉपर तरह से करे। उसके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि मुझे अपनी पर्सनालिटी दिखानी है वहाँ पर, और मेरे में ओरिजिनल थॉट होनी ही पड़ेंगी। जो मुझे बताया गया उसका वो मेरे बैकग्राउंड में हो सकता है, वो मुझे कुछ मददगार हो सकता है, बट उसको मुझे बड़ा जुडिशियसली इस्तेमाल करना है। वैसे तो कोचिंग को रिकमेंड नहीं किया जाता है, लेकिन अगर कोई कहे कि मैं कोचिंग बिल्कुल बंद करवा दूँ तो वो भी सही नहीं होगा, क्योंकि ना तो वो एक्सेप्ट होगा, राइट, और और तैयारी करने के लिए कोई किसी को रोक नहीं सकता है। करेक्ट। जितना तैयार होके आएगा उतना ही बेहतर उसके लिए है। लेकिन ये सोचना है उसको, खुद कैंडिडेट को सोचना है कि वो उसको कैसे इस्तेमाल कर रहा है। ओके सर। सो सही, ये भी सुना है कि कोचिंग वाले ऐसा करते हैं कि मान लीजिए 10 कैंडिडेट उनके सेंटर के रेकमेंड हो गए, वो 10 की उन्हें पीपीडीटी बनवा दी, सेल्फ डिस्क्रिप्शन बना दिया एंड बोल दिया कि ये तुम पढ़ लो, 10 रिकमेंड हुए थे, यही लिख के तुम भी रिकमेंड हो जाओगे। इसके बारे में मुझे कोई वैसे जानकारी नहीं है, लेकिन उससे कोई फायदा इसलिए नहीं होगा, राइट सर, क्योंकि वो जो पर्सनालिटी वो दिखाना चाह रहे हैं वो एक इंडिविजुअल बंदे की है सर, किसी दूसरे की तो वैसी हो नहीं सकती। और जो आप मेरे ख्याल से रेफर कर रहे हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर जो आप कह रहे हैं, पीआईक्यू जिसको कहते हैं, PIQs मे बी द सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट तो एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है। पीआईक्यू एक प्रोसीजर होता है जो एक मतलब वो फॉर्म होता है जिसमें आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरते हैं, जो बेसिकली हमारी 2 टेक्निक के लिए ज़्यादा लागू है, इंट्रू टेक्निक और साइकोलॉजिकल टेक्निक। हमारे जीटो टेक्निक में पीआईक्यू की कोई रेलेवेंस नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकल टेक्निक में इसलिए रेलेवेंस है क्योंकि वो कैंडिडेट को देखते ही नहीं है, वो उनके डोजर से ही उसको असेस करते हैं, तो उसकी कुछ बैकग्राउंड नॉलेज उनके पास होनी चाहिए। सिमिलरली इंटरव्यूइंग ऑफिसर को भी बैकग्राउंड नॉलेज उस कैंडिडेट की होनी चाहिए, जिससे वो अपने क्वेश्चंस भी कुछ फ्रेम करते हैं उसी हिसाब से। बट जीटो टेक्निक में तो डेमोन्स्ट्रेटेड परफॉर्मेंस है, उसमें उसके जो सामने कर रहा है वही काफ़ी है मेरे लिए कि इसकी पर्सनैलिटी क्या रही होगी और क्या है। So there is one mystery. What is behind the black glasses of the GTO? Like we all have seen that GTO पेड़ के नीचे जाके बैठ जाएगा आराम से, काला चश्मा लगा लिया है और इस तरफ देख रहा है, इधर टास्क हो रहा है, is looking in some other direction. And candidates are still figuring out कि यार मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा है, हो क्या रहा है ये। वो एक अच्छी बात है जो आपने कही, लेकिन वो because that person, then people are hanging from the फट्टा बल्ली, वो बांध रहे हैं पूरा दम लगा के, he is relaxed like this, हाँ ठीक है कर लो, मैं कहीं और देख रहा हूँ। वो एक्चुअली में आपकी गलत फहमी है कि वो कहीं और देख रहा है, तभी तो उसने वो गॉगल्स लगा रखे हैं। ओके सर। क्योंकि गॉगल्स में तो उसको दिख नहीं रहा वो किधर देख रहा है। और जीटीओ का यही तो टेक्निक है कि वो लोगों को करने देता है काम पूरे विदाउट, जैसा मैंने पहले आपको बताया, लीस्ट इंटरेक्शंस होने चाहिए जीटीओ के। द मोमेंट अगर जीटीओ ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा टास्क में तो फिर वो रियल वर्थ कैंडिडेट के निकालने में थोड़ा उसको मुश्किलात आएंगी। तो इसलिए हम उनको फ्री रन देते हैं, और जहाँ पर इंटरजेक्शन की ज़रूरत है, जहाँ पर लग रहा है कि उससे प्रोग्रेस ऑफ द टास्क में इफेक्ट आएगा या कुछ बहुत ज़्यादा ग्रॉसली रूल्स वायलेट किए जा रहे हैं, तब जीटो इंटरेक्ट करता है। और जब वो गॉगल्स पहन लेता है तो एक तो नज़र ही नहीं आता वो किधर देख रहा है। हाँ, उसके नेक के बेंडिंग इधर उधर से थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन चक्कर क्या है कि कैंडिडेट को ये ध्यान में रखना है कि उसको जीटीओ को देखना ही नहीं चाहिए। अ कैंडिडेट शुड बी ऑब्लिवियस ऑफ जीटीओ's एग्जिस्टेंस देयर,
ये एक बहुत अच्छा एक सिखलाई है कैंडिडेट के लिए कि उसको दिमाग में रखना है कि जीटीओ वहाँ है, सर जीटीओ वहाँ है, सर। लेकिन मुझे अपना काम करना है जो मुझे टास्क दिया गया है। सर जीटीओ उसको देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, उसका कंसर्न नहीं होना चाहिए। sir. Okay, sir. And there have been cases like where in the command task, people have made a kind of a group in the SSB. कि भाई मैं तुझे बुला लूंगा, तू मुझे बुला लेना, हमारा कॉपरेशन, वो OLQ खुद ही कैंडिडेट पढ़ के बैठे रहते हैं कि इसमें मेरे को ऐसे एक्ट करना पड़ेगा, इसमें मुझे ऐसे एक्ट करना पड़ेगा। सो आप लोग इस टाइप की चीज़ों को मतलब आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मतलब 4 का जो ग्रुप है 10 के ग्रुप में, कि ये 4 लड़के अलग ही चल रहे हैं बिल्कुल, ये अपनी चेस्ट नंबर्स को बुला रहे हैं, भाई फट्टा दे दियो। तीसरा बंदा वहां खड़ा है, वो तीसरे से भी फट्टा मांग सकता है, बट ही विल गो टू हिज ओन ग्रुप पर्सन। आपने सही बात करी। एक्चुअल में क्या है कि बिकॉज दिस हैज बीन सीन अ लॉट इन द एसएसबी की रात को जब सोने से पहले अगर अगले दिन कमांड टास्क है, अगले दिन एफजीटी कुछ है, तो वो 4-5 के ग्रुप बन के बैठ जाएगा कि भाई मुझे बुला लेना, तुम मुझे बुला लेना, हम दोनों 4-4 बार हो जाएंगे तो हमारा म्यूचुअल कॉर्पोरेशन काफी अच्छा लगेगा। तो ये एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग इनकी ओवर एक्टिंग हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि कमांड टास्क बहुत बाद में आता है, सर उसके पहले नंबर ऑफ टास्क जीटीओ ऑलरेडी देख चुका होता है, क्योंकि जीटीओ टेक्निक 2 दिन में होती है। सर और ये बात मैं आपको कहना चाहूँगा बहुत वेहेमेंटली कि जीटीओ टेक्निक इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टेक्निक एसएसबी में। मैं दूसरे टेक्निक्स को ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी अपनी तरफ से पूरे ऑफिसर लाइक ट्रेड्स जज करते हैं, जो क्वालिटीज हमको देखनी होती है कैंडिडेट के अंदर। बट जो कॉम्प्लेक्स टेक्निक है वो जीटीओ टेक्निक है, और इसलिए उसके टास्किंग भी इस मुताबिक है, और वो 2 दिन तक इसीलिए चलता है। जो कमांड टास्क की आपने बात करी, ये पहली बात तो अगले दिन आता है, नॉर्मली सेकेंड डे आता है, जबकि वो कन्फर्मेटरी सीरीज का टास्क है, उसको मैं पहले दिन भी कर सकता हूँ, लेकिन उसका कुछ इस तरह का नॉर्म बन गया है कि वो सब्सिक्वेंटली बाद में ही होता है। उसको मैं यहाँ बताना नहीं चाहूँगा कि क्यों वो बाद में होता है, क्योंकि वो इस इंटरव्यू के दायरे के बाहर है। लेकिन जैसे आपने कहा कि जो लोग बाग ऐसा क्लिक टाइप के बना लेते हैं, ऐसा ग्रुप टाइप के बना लेते हैं, और मेरे को तुम बुलाना और तुम उनको बुलाना, वो आइडेंटिफाई तो हो जाता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो अपने सबऑर्डिनेट्स बुलाते हैं एज ए कमांडर, उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको बुद्धिमानी दिखानी होती है। वो बुद्धिमानी क्या है कि अगर आप केवल इस तरह से कैंडिडेट उसको बुलाएंगे अपने सबऑर्डिनेट्स को, तो आप खुद अपने लिए पैर पर कुल्हाड़ी से मारने का काम कर रहे हैं। आपको सबऑर्डिनेट्स कौन से चुनने चाहिए? जिनमें कुछ दम है, जिनमें कुछ मादा है, जो आपके इंस्ट्रक्शन सही तरह से समझ सकें और एग्जीक्यूट कर सकें। तो अगर कोई ऐसे लोग बाग जो कि आपके साथ पूरे ग्रुप में काम कर रहे हैं, प्रीवियस दिन काम किया, और जैसे मैंने बताया ये सब्सिक्वेंट डे, सेकंड डे जीटीओ 2 दिन होता है नॉर्मली मैंने बॉडी किया, कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन नॉर्मली जीटीओ 2 में होता है। उस समय तक आपको पता लग जाता है कि किसमें कितना कौन अच्छा कैंडिडेट है जिसको मेरे को बुलाने में फायदा है। तो अगर जैसे हमारा एक वर्ड होता है वहां पर कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स आप बुलाए गए हो, वो भी जिसको हम वर्ड यूज करते हैं सोशियोमेट्री। Now sociometry is also very important in the sense कि वो सोशियोमेट्री वो अपनी बना लेते हैं उसमें कि हम ही 4 सोशल हैं पूरे ग्रुप के। करेक्ट। तो जीटीओ जो सोशियोमेट्री जज करता है वो देखता है कि ये जेन्युइनली बंदे बुलाए गए हैं कि नहीं बुलाए गए हैं। हाँ, नंबर ऑफ फिगर्स तो काउंट करता है कि कोई 6 बार बुलाया गया, कोई 3 बार बुलाया गया, तो सोशियोमेट्री एस्पेक्ट फर्क पड़ती है। लेकिन इतना एक्सपीरियंस जीटीओ को हो जाता है कि वो जज कर लेता है कि ये 4-5 बंदे आपस में बुला रहे हैं या जेन्युइनली किसी को बुलाया गया है। तो जेन्युइनली उसी बंदे को बुलाना चाहिए जो कि मतलब आपका मददगार हो। उसमें फिजिकल एट्रीब्यूट्स भी काम में आते हैं। आप देखो कोई बंदा थोड़ा वायरी फ्रेम का है, कोई थोड़ा हैवी फ्रेम का है, अगर उसमें कुछ मेंटल एबिलिटीज अच्छी हैं तो मैं समझता हूँ एक अच्छा कमांडर एक वायरी फ्रेम वाले को बुलाएगा, एक थोड़े हैवी वाले को बुलाएगा, क्योंकि उसको चंद एक चीजें जो फलक्रम लीवर्स वगैरह बनाने में जो करना पड़ता है उसमें वो फायदा करता है। वेट एंड काउंटर वेट प्रिंसिपल में फायदा होता है, लेकिन वो एक स्मॉल एस्पेक्ट है। मेजर एस्पेक्ट क्या है? उस कैंडिडेट का जिसको आप वो बुला रहे हैं सबऑर्डिनेट के तौर पर, उसका वैल्यू क्या है, क्या वो आपके टास्क में वैल्यू ऐड करता है या नहीं करता है। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लाइक अगर नॉर्मल छोटा सा टास्क है, आप एकदम बिल्कुल हल्क को बुला लेंगे तो फिर वो समझ में आ जाएगा। वो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे कहा, कोई जरूरी नहीं है आपको जो लीवर फलक्रम बनाना है वो दूसरा वायरी फ्रेम वाला भी बना सकता है, उसमें तो तरीका है बनाने का। बट नॉर्मली आप देखोगे अगर थोड़ा सा कोई हैवी बेल्ट का है तो उसमें थोड़ा मददगार ज़्यादा हो गए, क्योंकि मोर वेट इज देयर, बट दैट इज अ वेरी स्मॉल एस्पेक्ट ऑफ द होल थिंग।
मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज, जिसको ध्यान में रखना चाहिए एज ए कमांडर, कि मुझे उन लोगों को बुलाना चाहिए जिसकी मेंटल एबिलिटीज अच्छी है. Right, sir. And sir, there is one more thing in the GTO process, group discussion. ओके. And उसमें जो लोग चिल्लाते हैं, बिल्कुल किसी को बोलने नहीं देते हैं, how to tackle those kind of situations, because GTO यहाँ पे अगर ग्रुप बना हुआ है, जैसे हम दो ऐसे बैठे हैं, ऐसे सर्कुलर में चेयर्स लगी हुई हैं, GTO will go and sit somewhere behind 10 feet पीछे, ओके. and he'll try to listen things what everybody is saying. And उसमें क्या होता है सर, कुछ होते हैं जो रिपीटर्स होते हैं जनरली, which are like वो कॉल्ड द वेटरन्स ऑफ द एसएसबी, जिन्होंने 10 बार 15 बार किया होता है, एंड वो पूरा डिस्कशन हाईजैक कर लेते हैं 4-5 मिलके, वो किसी को बोलने नहीं देते हैं. वो ग्रुप डिस्कशन कम लगता है सर, ऐसा लगता है कि मतलब चिल्लम चिल्ली मची पड़ी है उस टाइम. जैसे ग्रुप डिस्कशन टास्क के बारे में आपने कहा, ग्रुप डिस्कशन टास्क फर्स्ट टास्क होता है जीटीओ सीरीज में, सर और इसमें आपको बारी बारी 2 टॉपिक्स दिए जाते हैं. पहले टॉपिक दिया जाता है, 2 टॉपिक जीटीओ अनाउंस करते हैं, उसमें आपको मौका मिलता है कि आप एक टॉपिक उसमें सिलेक्ट करें. करेक्ट. उसमें भी आपको इनिशिएटिव दिखाने का मौका लगता है, क्योंकि फिर आप उसको सिलेक्ट करते हैं टॉपिक को. उसमें भी आप जैसे कह रहे हैं कि थोड़ा चिल्लम चिल्ली मच जाती है, लेकिन उसमें हम ये देखते हैं कि किसने इसको जुडिशियसली सिलेक्ट करवाया है. और कोई भी बुद्धिमान आदमी वैसा टॉपिक सिलेक्ट करवाएगा जिसमें वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है. करेक्ट. ओके. सो कहने का मतलब है, ग्रुप डिस्कशन टास्क में हम आपके कम्युनिकेशन स्किल्स देखते हैं, आपकी नॉलेज देखते हैं, आपकी रीजनिंग एबिलिटी, लॉजिक देखते हैं, किस तरह से आप अपने व्यू पॉइंट्स को पुट अक्रॉस करते हैं, किस तरह से लोगों के व्यू पॉइंट्स को भी अकोमोडेट करते हैं अपने उसमें. और एक जो डिस्कशन होता है वो एक इंगेजिंग डिस्कशन में लाना होता है. तो जब जैसे आपने बताया कि रिपीटर लॉट है, वो उनको लगता है हमको बोलते ही रहना है, स्टार्ट ही करना है, उस केस में वो जीटीओ का इंटरजेक्शन काम करता है. जीटीओ को वहाँ पर कब इंटरजेक्ट करना है, जब उसको लगता है कि कोई मेरे को फ्रूटफुल मिल नहीं रहा. वाई जीटीओ लुकिंग इनटू इट? जीटीओ आपको ये देखना चाहता है कि भाई मुझे मेरे इनपुट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं. ही इज लुकिंग फॉर इनपुट्स फ्रॉम इंडिविजुअल कैंडिडेट्स. उसके 10 के 10 के इंडिविजुअल कैंडिडेट के इसके 10 का ग्रुप होता है, 10 के 10 को उसको आपके इंडिविजुअल ट्रेड्स देखने हैं. तो वो तो ये चाहेगा कि आपका डिस्कशन बहुत इंगेजिंग हो, बट एट द टाइम फ्रूटफुल हो, आइडियाज आए हमारे मेरे पास, जिसमें मैं उसको वे कर सकूं कि किसने आइडियाज अच्छे दिए, किसने लॉजिक दिया, किसने नॉलेज दिखाई, किसने नहीं दिखाई. तो उस केस में हम क्या करते हैं कि ऐसे केस में इंटरजेक्ट करके उसको मौका देते हैं कि दूसरा बात करें. विद इन द कैंडिडेट्स ऑल्सो थोड़ा सा बुद्धिमानी ये भी दिखा सकते हैं. जो इंटेलिजेंट बंदे होते हैं वो कहते हैं ओके फाइन यार, यू स्पोकन, किसी और को चांस देते हैं. जब आप ऐसा कहते हैं तो क्या होता है कि आपने एक तरह से कहावत है कि आपने यू हैव किल्ड 2 birds with 1 stone. आपने जो बहुत ज़्यादा एक्सुबरेंट हो रखा था उसको आपने तकरीबन शटअप कॉल सा दे दिया, और आपने दूसरा बंदा जो बेचारा नहीं बोल पा रहा था उसको मौका दे दिया. लेकिन ऐसे केस में आपको यह ध्यान रखना है कि आप कट थ्रोट नहीं हो सकते, कि आपने इस तरह का तो बीच में इंटरजेक्ट कर दिया, मॉडरेटर बन गए आप, और किसी दूसरे को आपने मौका दिया कि चलो तुम बोलो, और उसको बोलने का मौका भी ना दो और खुद बोलने लगो. तो वो तरीका सही नहीं है. आप पहले खुद ही मॉडरेटर बने उसके अंदर, और फिर भी अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर वो जीटीओ का इंटरवेंशन होता ही है कि वो चाहते हैं कि वो इंटरवीन करें और मौका दें कि सब लोग को मौका लगे बोलने का. ओके सर. और इसीलिए एक और टॉपिक दिया जाता है, उसमें आपको मौका लगता है कि आप बोलें. मैं ये नहीं कह सकती उसमें भी इस तरह का हो हल्ला नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसे केस में जो मीनिंगफुल इंटरवेंशन जो जीटीओ का होता है, और प्लस विद इन द ग्रुप जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आप बनाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, ये भी एस्पेक्ट उसमें देखे जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम कम्युनिकेशन स्किल, नॉलेज, रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग के बाद वो सब भी देखा जाता है कैसे आप लोगों को अकोमोडेट करते हैं, कि आप फ्लेक्सिबल हैं अपने अप्रोच पे. नहीं हो सकता है एक कैंडिडेट अच्छा बोल रहा हो तो आपको उसकी बात भी रखनी है, तभी वो डिस्कशन एंगेजिंग होगा, नहीं तो नहीं होगा. सर वन मोर थिंग, GTO activities have a lot of physical things, like they have to climb the ladder, then Burma bridge, then swing, then all those physical, what do you call them? Physical endurance, physical stamina. Physical tasks. And there are times like people are studying for their JEE, NEET exams while 12th boards, and that time जो बच्चे का psychology होता है वो होता है कि यार खेलना कूदना तो एक साल में रहने देता हूँ, 12वीं और JEE की तैयारी अच्छे से कर लेता हूँ, बाद में अपनी बॉडी फिट कर लूंगा, बिकॉज ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड उसमें NDA एग्जाम में समथिंग लाइक जो JEE और NEET के लोग तैयारी करते हैं एज अ टू चेक देयर प्रेपरेशंस इफ दे आर डूइंग गुड और नॉट. वो NDA का भी एग्जाम देते हैं. एंड उसमें क्या होता है सर, बंदा जो होता है बिल्कुल हैवी बल्की हो जाता है,
और फिर वो सडनली ही कम्स टू SSB. So how can he keep himself fit at that time? And physical fitness कितना इम्पोर्टेंस आता है GTO टास्क के अंदर में? मैं फिजिकल फिटनेस को बहुत इंपॉर्टेंस दूंगा, So, जबकि मेंटल स्टेमिना एंड फिजिकल स्टेमिना दो एस्पेक्ट्स होते हैं so फिजिकल एंडोरेंस के। मेंटल स्टेमिना तो इंपॉर्टेंट है ही, बिकॉज इन एनी केस जो भी हमको वहाँ टास्किंग कराते हैं उसमें बहुत अनफेमिलियर सिचुएशंस होती हैं, प्रेशर में आप काम करते हैं, प्रेशर में आपको डिसीजन लेना पड़ता है, कोई डिसीजन आपके जो आप आइडियाज सोचते हैं, जो आर्टिकुलेट करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, वो होता नहीं है, तो प्रेशर तो होता है। लेकिन फिजिकल स्टेमिना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर्टेन आउटडोर टास्क हैं जिसमें आपको अंडरटेक करने पड़ते हैं टास्किंग, उसमें कुछ आपको इवन लिफ्टिंग ऑफ अ पल्ली और फट्टा ऑल्सो रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एबिलिटीज। सो फिजिकल एबिलिटीज इंपॉर्टेंट है। और जैसे आपने कहा कि कोई बल्कि हो जाते हैं तो उसका तो डेमिनर ही ऐसा लगता है, जो मैंने पहले पॉइंट आपको बताया था जब आपने पूछा था कि सर क्या देखते हैं ट्रेड्स में, तो उसका फिजिकल अपीयरेंस ऑल्सो काउंट्स वेरी मच। इफ यू वांट टू बिकम अ डिफेंस ऑफिसर, इज फिजिकल अपीयरेंस ऑल्सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। सो इन द सेंस कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मैं मानता हूँ उसमें बहुत स्टडी वर्किंग आवर्स लगाने पड़ते हैं, बट कुछ समय आपको फिजिकल फिटनेस पे भी लेना पड़ेगा, जिसमें कि आप थोड़ा बहुत अपने को एक्टिव रखें। और जब आप एक्टिव रखेंगे, एक तो आपका थोड़ा सा फिजिकल बीइंग भी अच्छे शेप में लगेगा, और साथ साथ आप जब SSB में जब आप जाते हैं और विशेषकर GTO टास्क करते हैं, क्योंकि फिजिकल एबिलिटी GTO टास्क में ही ज़्यादा दिखाई देती है, वो ज़रूरी है, तभी आप अच्छी तरह वो टास्क को अंडरटेक कर पाएंगे, नहीं तो आपको मुश्किलात आएंगी। एंड सर, इसके लिए आदमी अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर ले? पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम द डिफेंस बैकग्राउंड, दे मस्ट हैव सीन दीज ऑब्स्टिकल कोर्सेज एंड थिंग्स कैंट में। वो शाम को उन्होंने साइकिल रोकी, बाइक रोकी, वो 10 मिनट उन्होंने टाइम कर लिया। जो बिल्कुल ही गांव साइड से आ रहा है या सिविलियन बैकग्राउंड से आ रहा है, हाउ शुड ही अप्रोच टू दोज ऑब्स्टिकल्स? बिकॉज उसमें क्या होता है कि व्हेन यू आर नॉट ट्रेन्ड इन डिफेंस बैकग्राउंड, जनरली एक आदमी आपको सिखा देगा कि रस्सी ऐसे पकड़ो, ऐसे पार कर लोगे। जो सिविल बैकग्राउंड से आ रहा है, मे बी उसके पास बाइसेप्स हो, उसके पास पावर हो उसके मसल्स में, बट उसे टेक्निक ही नहीं पता है कि उसको ऑब्स्टिकल क्रॉस कैसे करना है। ये मुश्किल तो है, इसमें मैं कोई दो राय नहीं कि डिफेंस बैकग्राउंड वाले जो कैंडिडेट्स आते हैं उनको ये इस तरह का एडवांटेज तो मिलता है, लेकिन जो विलेज बैकग्राउंड से आ रहा है वो दौड़ भाग तो कर सकता है, अपने को फिजिकली एक्टिव तो कर सकता है। और जहाँ तक रोप का पकड़ने का कार्रवाई है और ऑब्स्टिकल करने की कार्रवाई है, उसको पहले वहाँ डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, उसको बताया जाता है, ठीक है ना। और फिर उसको जस्ट बिकॉज वो अगर वो कैंडिडेट है और रियली सीरियस है डिफेंस पे ज्वाइन करने के लिए, चाहे वो विलेज बैकग्राउंड का भी हो, उसको कहीं ना कहीं मौके देखने पड़ेंगे। जैसे आपने बताया कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट ने भी अपने आप ये ऑब्स्टिकल्स बना रखे हैं, उसको परफोर्स उस इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा, जिससे उसको थोड़ा सा अवेयरनेस आ जाए, एक आध मौका लग जाए उसको करने का। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि अगर आप उसको करके आते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ता है, लेकिन बाकी दौड़ भाग करना, अपने को फिजिकली फिट रखना, वो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको कोई एकेडमी में जाके करना है या उसको डिफेंस बैकग्राउंड का ही होनी ज़रूरी है। हाँ, वो एडवांटेज जो डिफेंस बैकग्राउंड का मिलता है उसका कोई तोड़ नहीं है, लेकिन ये बात ये भी है कि डिफेंस बैकग्राउंड वाले से एक्सपेक्टेशंस भी हमारी उसी तरह से ज़्यादा होती हैं, क्योंकि अगर वो उससे अवेयर है कोई चीज़ों से, तो उससे एक्सपेक्टेशंस इसी वजह से ज़्यादा बन जाती हैं कि ये तो इसको पूरी सहूलियतें मिली हुई हैं, तो इसको तो कर लेना चाहिए ये चीज़। अगर वो नहीं करता तो ऐसा कोई हम उसके अगेंस्ट नेगेटिव इफेक्ट नहीं रखते, लेकिन एक माइंड में तो ये बात आती है कि इसको पूरी फैसिलिटीज़ मिलने के बावजूद भी ये कुछ नहीं कर पा रहा है। एंड इसमें देयर इज वन थिंग, when there are 2-3 dominating people in the group, there is a genuine candidate जो तैयारी करके गया है, बट वो है थोड़ा मतलब नॉर्मल नेचर का, he'll कि मैं ज़्यादा चिल्लाऊंगा नहीं, मैं ज़्यादा बोलूंगा नहीं, एंड अल्टीमेटली क्या होता है इन द इंटायर SSB का प्रोसेस, वो उसको कहीं लगता है he has underperformed, एंड उसके वो दिमाग में वो चीज़ चलती रहती है, जब टास्क हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, उसके दिमाग में वो चीज़ चलती रही है कि यार मैंने तो अंडर परफॉर्म किया, इसने मेरे को ओवर पावर कर दिया। सो उसको ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए, या ही हैज़ बीन ऑब्जर्व प्रॉपरली बाय द GTO कि तूने जैसा परफॉर्म किया है सही किया है, डोंट फील डिसहार्टेंड। मैं तो ये कहूँगा कि कभी भी कैंडिडेट को ये नहीं फील करना चाहिए कि उसने अंडर परफॉर्म किया है, और साथ साथ ये भी नहीं सोचना चाहिए कि GTO ने उसको सही तरह से देखा नहीं है। GTO का टेक्निक का जो असेसर की क्वालिटीज़ ये हैं कि वो असेस ये कर पाए कि इस कैंडिडेट को मौका लगा या नहीं लगा, इस कैंडिडेट को जितना मौका लगा उसमें उसने क्या कंट्रीब्यूट किया, और उसको वर्थ वो ज़्यादा देता है उस चीज़ में।
और इसीलिए एक चीज़ और भी हम फॉलो करते हैं कि हम लोग कभी भी किसी को डिसएडवांटेज ना देने के चक्कर में, जैसे आपने बताया कि सर कि एसएसबी के वेटरन्स बन जाते हैं या बहुत बार रिपीटर्स होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम जब बैचिंग करते हैं, जो जीटीओ ही करता है नॉर्मली, हम बैचिंग भी इसमें से बताओ करते हैं कि हम सब लोग जो प्रीवियसली एक्सपीरियंस्ड होते हैं उनको हम एक साथ ही रख देते हैं। ओके और जो फ्रेश कैंडिडेट आता है उसको हम मौका, जिससे ज़्यादा उसको मौका लगे, इस तरह से वो डोमिनेट ना हो जाए किसी प्रीवियस एक्सपीरियंस वाले बंदे से, हम फ्रेश लॉट को एक साथ रखने की कोशिश करते हैं जहाँ तक हमारी कोशिश रहती है, जिससे कि वो फ्रेशर होता है, बाकी भी फ्रेशर होते हैं, उसमें उसको एग्जिबिट करने का चांसेस ज़्यादा मिलते हैं। कभी ऐसा मौका आता है कि जब ऐसा हम नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि हम फ्रेश लॉट को ज़्यादा एक साथ रखें, दूसरे लॉट को कम रखें, और अगर ऐसा मौका लगा कि पूरों को एक साथ रख दें तो और भी अच्छा होता है। सो बिकॉज क्या होता है कि एफजीटी या ग्रुप टास्क में बंदे ने अच्छा परफॉर्म किया एंड सडनली उसका जो कमांड टास्क आता है वो बिल्कुल ही बेसिक्स आ जाता है कि यहाँ पे तुमने फट्टा रखा एंड तुमने उसको पार कर लिया, तो उसके दिमाग में हो जाता है यार सबको तो कॉम्प्लेक्स टास्क दे रहा है जीटीओ, मुझे बिल्कुल छोटा सा टास्क दे के। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, कमांड टास्क एक टास्क है जो इम्पोर्टेंट है, बट इट इज़ नॉट द ओनली इम्पोर्टेंट टास्क, इट्स एन इम्पोर्टेंट टास्क। मैं ये कहना चाहूँगा जीटीओ के 9 के 9 टास्क इम्पोर्टेंट हैं, जो कि इंडोर इन नेचर होते हैं और आउटडोर इन नेचर होते हैं। आप मुझे कहेंगे ये क्या फ़र्क है इंडोर एंड आउटडोर में? इंडोर और आउटडोर फ़र्क ये है कि इंडोर एक्टिविटी में, जबकि पूरी एक्टिविटी जीटीओ की आउटडोर ही होती है, इंडोर एक्टिविटी में जो टास्क है लिटिल बिट फिजिकल एट्रीब्यूट्स आर नॉट बीइंग really being assessed that time. Your vocal cords or abilities to think, act, speak are being assessed more. Like a task like lecturate, group discussion, group planning exercise. Whereas the outdoor tasks, in any case, you already named them. Progressive group task है, half group task है, command task है, final group task है. All those individual obstacle task है. So they are outdoor in nature. But they are all intermixed. There are some indoor tasks, some outdoor tasks. So what is happening is that over a period of time, number of tasks have been already undergone, and command tasks भी, क्योंकि वो आपको ऐसे कमांडर बनाते हैं, लीडरशिप स्किल्स आपकी चेक करते हैं, किस तरह से अपने मैटर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है आपको, यू मेड अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन दैट यू हैव टू टेक अ टीम ओवर अ सेट ऑफ प्रॉब्लम फ्रॉम हेयर टू अनदर, आइडियाज विल बी योर, हाउ विल यू आर्टिकुलेट देम, हाउ विल यू हैव देम एग्जीक्यूटेड बाय द पर्सन जिनको आपने सबऑर्डिनेट के तौर पर बुलाया है। तो आपका ये कह देना कि मेरे को इजी टास्क दे दिया और किसी को डिफिकल्ट टास्क दे दिया, ये आपका सोच है। जीटीओ बहुत सोच समझ के आपको कमांड टास्क अलॉट करता है, ठीक है, जिसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपकी एबिलिटीज़ बहुत काउंट करती हैं, आपकी परफॉर्मेंस जो अभी तक रही है वो भी एक उसका एक जरिया होता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि यहाँ जाना नहीं चाहिए मुझे, बट इतनी बात आप समझ सकते हैं कि कमांड टास्क इम्पॉर्टेंट टास्क है, बट इट इज़ नॉट द ओनली टास्क। और कमांड टास्क में एग्जीक्यूशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसको सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होना चाहिए। इनफैक्ट सेंस ऑफ अचीवमेंट जीटीओ हर एक टास्क में इंश्योर करता है। अब ग्रुप में टास्क हो रहा है, हाफ ग्रुप में टास्क हो रहा है, और इंडिविजुअली जैसे कमांड टास्क में हो रहा है, जीटीओ का असेस करने का तरीका ये है कि वी मस्ट सेंड यू विद अ सेंस ऑफ अचीवमेंट। द मोमेंट अ कैंडिडेट गोज विद अ सेंस ऑफ नॉन अचीवमेंट, if at all there are number of some tasks are left out, they might affect the task. Right. So we have to keep the candidate motivated throughout. And really speaking, a candidate really cannot assess कि मैंने अच्छा किया, मैंने बुरा किया है। आपका असेसमेंट जो परसेप्शन अपने बारे में है वो किस हद तक सही है, किस हद तक सही नहीं है, वो आप जीटीओ पे ही छोड़िए, तभी वो क्वालिफाइड असेसर है। अगर आप कैंडिडेट अपने आप ही अपने असेस करने लगेंगे तो फिर नहीं होगा। हाँ, आप असेसर मत बनिए, वो टास्क उसका है, वो असेस कर रहा है आपको, और आपका बर्थ मिलेगा। असेसमेंट करना एक बहुत बड़ी कला है, और जीटीओ को भी बड़ी खुशी होती है कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट ग्रुप के सिलेक्ट हों। तो आइडिया इज नॉट टू रिजेक्ट। बहुत गलत फहमी बहुत इन्वायरमेंट में फैली रहती है कि फलाना सेंटर तो रिजेक्शन सेंटर है, जीटीओ में पास ही, सॉरी एसएसबी में पास ही नहीं करते, ऐसा नहीं है। परफॉर्मेंस पे पास किया जाता है, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं रखा जाता है, और कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका दिया जाए। बट एक बात ज़रूर है कि डिफेंस सर्विस ऑफिसर बनने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं। एक तो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ तो मैंने बताया, तो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ में सब कुछ निहित है, क्या पैरामीटर्स हैं, वो रिक्वायरमेंट, वो पैरामीटर्स मीट करने ही पड़ेंगे कैंडिडेट को, और वो बड़े स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं। वो रिक्वायरमेंट शायद आईआईटी के लिए ज़रूरत ना हो, वो रिक्वायरमेंट डॉक्टर के लिए जरूरत ना हो, आईएएस बनने के लिए भी जरूरत ना हो सकता है, बट द फैक्ट इज जो
अपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पैरामीटर तो मीट करने पड़ेंगे उसको। Okay. और ये मान के कैंडिडेट को हमेशा जाना चाहिए कि मुझे रिजेक्ट करने के लिए नहीं बुलाया गया है, मुझे सिलेक्ट करने के लिए बुलाया गया है। और बहुत खुशी होती है एसएसएस को, चाहे वो जीटीओ हो, साइकोलॉजिस्ट हो या इंटरव्यूइंग ऑफिसर हो, कि लोगों को सिलेक्ट करें। Okay. So like there are many people who are planning for joining the defense forces as an officer, and they have given number of attempts. And there are again people in the line who are coming as a freshers. So any message you would like to give to them, like what for a repeater, what message you want to give, for a fresher, what message you want to give? Firstly, to start with the repeater. So For repeater, I would compliment that person, Sir. that he is really motivated. He is feeling that I must join the defense forces. Sir, That's why he is coming a number of times in spite of his non-selections. there's one thing, sir, I want to ask. A person is coming 10 times, 15 times, 17 times. उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं, ओनली थिंग इज फॉर अ पर्टिकुलर एंट्री वो नहीं आ सकता उतने टाइम के लिए, क्योंकि जैसे एनडीए के लिए 16.5 to 19.5 ईयर्स का वो है, जब वो रिटन एग्जाम पास करता है उसका नहीं सर, वो एसएसबी आता सब है। मिला जुला के फ्रॉम एनडीए से वो ये स्टार्ट तो करता है, रिपीटर जब तक वो 25 वही मैं कहना चाह रहा हो जाता है। हूँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि एसएसबी तो कॉमन है हर एक के लिए, Correct. चाहे वो एनडीए की हो, चाहे वो सर्विस एंट्री हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो ओटी हो, दे आर ऑल सेम। सो इफ अ पर्सन इज कमिंग फॉर एसएसबी, his number of attempts keep getting increases for whatever entry he has come for. Sir. So that nobody can stop him. He can apply for a number of times. So what goes in the favor of a repeater is, in spite of the fact that he has not made it, he is still endeavoring to get into the forces, and he is determined enough to take a chance. He might make it, he might not make it, as a separate issue. So that is good for him. For a fresher, I feel the field is very, very widely open for him. He is a fresher. He is coming for the first time. He must just come confident, motivated that he is to perform the best. Sure. The moment he steps into the SSB selection center and whatever SSB allotted to him, he must, for the number of 3-4 days, आजकल तो स्क्रीनिंग टेस्ट भी होता है, पहला उसका मोटिव होना चाहिए, मेन एम होना चाहिए, मेरे को स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना है। Correct. जब वो स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर लेता है, उसके बाद उसको फिर 4 डेज का एसएसबी फेस करना पड़ता है। उसको ये लगना चाहिए कि मुझे ये 4-5 दिन मैं जो एसएसबी में आया हूँ, आई मस्ट गिव द बेस्ट शॉट, आई मस्ट डू द बेस्ट विच आई कैन डू, अल्टीमेट whatever is in my hands. Okay. Rest he should leave to the God and things will be fine. मतलब दिमाग में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। बिल्कुल जरूरत नहीं है सोचने की, और उसको ये रिपीटर और फ्रेशर और ये उसके दिमाग में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। Okay. He must have an feeling that I am a candidate, I need to perform my best. However somebody else performs, that's not the issue, and leave the rest to the assessor and ultimately the God. Okay. Which is the ultimate. Okay, and the main theory is कि आप एसेसर मत बनो, let assessor do the बिल्कुल सही बात है, बिकॉज आप असेसर बन भी नहीं सकते। एक तो पहली बात यह है कि आपको पता ही नहीं है कि क्या बिकॉज क्या उसमें वर्क क्या होता है कर रहा ना, है। 15 OLQs होते हैं, उसमें से एक होता है करेज वाला, हाँ, तो वो स्टोरी में सिर्फ करेज की बात कर रहा है, एंड फिर वो ग्राउंड पे जब आपके पास जा रहा है, वो रस्सी पकड़ता है, रस्सी पे कूद ही नहीं पाता है, करेक्ट वहाँ उसका करेज का प्रॉब्लम हो जाता है। जी, तो ऐसे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, OLQ के हिसाब से अपना बिहेवियर मोल्ड कर लेते हैं, बिल्कुल सो ये उनको नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। OLQs आपके बैक ऑफ द माइंड में होने चाहिए। सर, OLQs को आपको मैनिफेस्ट करना है आपके परफॉर्मेंसेस से, आपके जो डेमोन्स्ट्रेटिव परफॉर्मेंस हो या रिटन परफॉर्मेंस हो या स्पोकन परफॉर्मेंस हो। जैसे हमारी एसएसबी टेक्निक जो है, सॉरी एसएसबी प्रोसीजर है, वो 3 टेक्निक्स में है जो मैंने आपको पहले बताया, और संस्कृत श्लोक है मनसा वाचा एंड कर्मणा। It's the 3 apex of the equilateral triangle. Okay. The mansa is the psychological technique, the vacha is the interview technique, and the karmana is the dito technique. Sir. And all these techniques are independent of each other. Sir. They are looking the same very qualities. So जैसे आपने बताया कि वो स्टोरीज में करेज दिखाता है, वो जीतो को नहीं पता है, क्योंकि जीतो को अपने नोट ना साइकोलॉजिस्ट उससे नोट, नो असेसर इज एक्सचेंजिंग एनी नोट्स ईच अदर, ना इंटरव्यू ऑफिसर के साथ आपने क्या किया मुझे कुछ पता नहीं है, ना मेरे को पता होना चाहिए। सिमिलरली मेरे साथ क्या कर रहा है कैंडिडेट, ना साइकोलॉजिस्ट को पता होना चाहिए ना इंटरव्यू ऑफिसर, तभी वो एक फेयर असेसमेंट होगा। बिकॉज वी डू नॉट एक्सचेंज अवर नोट्स, वी असेस द इंडिविजुअल इन अवर टेक्निक, एंड अपनी टेक्निक में वो कैसे उसने परफॉर्म किया हम उसको जज करते हैं। आपने कहा जैसे कि एक कोस्ट कैंडिडेट आ रहा है, वो हर एक टेक्निक में करेज का उस मुताबिक दिखा रहा है। द साइकोलॉजिस्ट इज वाइज इनफ टू रिलेट कि भाई स्टोरी में क्या क्या पूछा गया है, क्या स्टोरी थी और उसने क्या उत्तर दिया है, तो वो रिलेट करता है और अपने अपने ऑब्जर्वेशन बनाता है, क्योंकि रिपोर्ट तो सब लिखते हैं अलग अलग। करेक्ट।
तीनों अपनी अलग अलग रिपोर्ट लिखते हैं और अपने अलग अलग असेसमेंट देते हैं। और कितने बार ऐसा होता है कि आपने जीटीओ में अच्छा नहीं किया है, साइकोलॉजिस्ट में बहुत अच्छा किया होता है। कितने में होता है आपने इंटरव्यू बहुत अच्छा किया है, आपके बाकी टेक्निक इतने अच्छे नहीं गए होंगे। कितने बार ऐसा होता है कि आप तीनों टेक्निक बहुत अच्छा करते हैं। Sir. तो ऐसे कैंडिडेट्स गिने चुने होते हैं, लेकिन होते हैं। सो इट इज़ नॉट दैट वे। आपको अपना वहाँ पर वो करना है, अपना परफॉर्मेंस करना है Sir. और लीव रेस्ट टू द असेसर्स। उनके पास तरीके हैं आपकी पर्सनालिटीज को असेस करने के। Thank you, sir. Thank you for your experience about the GTO, and I'm sure viewers में काफ़ी लोग होंगे ऐसे जो अभी SSB के लिए जा रहे होंगे, and they will definitely get gain insights from it. थैंक यू ऋषि। जो कुछ मैंने बताया इन ब्रॉड टर्म्स में, मुझे लगा कि शायद वो जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ज़रूर यूज़फुल होगा और वो अपनी इस तरह से तैयारी करें। Sir. डिफेंस फोर्सेस वो ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन वो ज्वाइन करना चाहते हैं, इसलिए वो मैं समझूंगा कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कोई मिलेगा नहीं। Sir. एंड डिफेंस सर्विसेज वे ऑफ लाइफ है, बहुत अच्छा जॉब है। Sir. आपको नेशन को सर्व करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है Sir. और आप उसके लिए मोटिवेटेड रहें, मेहनत करते रहें और डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करें। मैं तो आपको बार बार यही कहूँगा। धन्यवाद। Thank you, sir. जय हिंद। Thanks, sir.